Good morning and welcome in the histories class. I hope you are safe and well. So, in last class, we were discussing about the making of the global world. We discussed how all the things were changing in the 19th century. We discussed about the Silk Route in the world, as well as we discussed how the food was traveled from one place to other place. Today, what we are going to discuss is conquest, disease, and trade. In last class, I explained that when we found the America, there was a different change in the crop system, but how we conquered, how sorry not we how European people conquered the America, that was also interesting story. So new trades and routes by the sea. First thing is, yeah, so what we are going to discuss today, how these people conquered this kind of the area and how the globalization started with from the different land. So what was happening in 16th century, the European sailor found a sea route to the Asia as well as to the America. It was starting in the end of the 16th century. Not end of the 16th century, but end of the 15th century, you can say. It was started, if you remember, end of the 15th century, Vasco da Gama came to the India in 1498. So when Vasco da Gama came to India, that was the first, basically a voyage, you can say. Voyage is supposed to be the sea traveling, so that was the first success voyage towards the India. And after that, people start traveling through the ships and start discovering the new land. So that was a craze at that time period in the European people. So Portuguese and Spanish, all the people was thinking to take that kind of the adventure. So ship के ऊपर जो ट्रैवल करना है, वो बेसिकली इस टाइम पीरियड में क्या होगा, एक एडवेंचर हो गया। और लोग जो है इस एडवेंचर को फॉलो करने के लिए न्यू न्यू रूट्स पे जाने लगे, न्यू न्यू लैंड को खोज करने लगे। तो फर्स्ट जो रूट है हमारा एशिया का, तो वास्को डी गामा ने ही खोजा। उसके बाद जो एशिया के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका का जो रूट है, उसको भी स्प्रेड किया गया। तो जो न्यू ट्रेड्स के रूट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश की गई या एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई, वो हम कह सकते हैं। Why they were exploring these kind of the things? Because it was a region of the trade. When Vasco da Gama came to India, he came and he took many things like spices and things and sold into the world market and grabbed the huge money for that. So that's clear the idea that there are many things in the other part of the world which supposed to be sold in that market. So then for the profit was the one purpose. Because of that, people start moving one place to another place in for एज अ ट्रेडर, यू कैन से कि ट्रेडर के रूप में जो वन प्लेस से अनदर प्लेस वो मूव करने लगे सिर्फ प्रॉफिट की वजह से। एंड इसके साथ ही जो गुड्स हैं, पीपल्स हैं, नॉलेज हैं, कस्टम्स हैं, वो कहीं ना कहीं वन प्लेस से अदर प्लेस पर आने लगे। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज द सेंटर ऑफ द ट्रेड बिकॉज वास्को डी गामा एक्सप्लोर्ड दैट रूट एंड फ्रॉम इंडिया देयर वाज मैनी थिंग्स लाइक कॉटन ऑफ इंडिया एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया। these kind of the things was very famous in the world market. That's why people was buying that, and that there was a demand of these things in the world market. So that's why India become a center of these things. And discovery of the America also was one of the part, that America was a land which was totally unruled by anyone. There was no one ruling in America. 9th class में भी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि अमेरिका पे कोई रूल नहीं कर रहा था. There was tribal community who was living in the America, and they was not having the land owning. They was not thinking that this is our land, we supposed to control it. And European people, when Columbus find out about the America, people start moving towards the America. In starting, they was taking the things from that tribal people as a gift, okay, because tribal people were happy to give them gift. So people start taking the gift, and they came with that gift, and that gift they were selling there in Europe. So वो अमेरिका में जा रहे थे, कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं, उनको यहाँ पर लाकर सेल करते हैं। और उनसे उन्हें समझ में आ गया कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो मिनरल्स हैं, अदर इंपॉर्टेंट जो मेटल्स वगैरह, उनको यूज़ किया जा सकता है, एज वेल लैंड रिसोर्स उनको यूज़ किया जा सकता है। सो इस चीज़ ने और भी लोगों को ज़्यादा मोटिवेट किया कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ जाने के लिए। तो वहाँ पर हम देखें तो वास्ट लैंड हमें देखने को मिली, अबंडेंट क्रॉप्स, मिनरल्स जो हैं वहाँ पर इतने ज़्यादा थे कि जिसकी वजह से लोगों ने अमेरिका की तरफ जाना स्टार्ट किया और माइग्रेशन अमेरिका की तरफ स्टार्ट हुआ। इट वॉज नॉट ओनली द मिनरल्स एंड द क्रॉप्स, ऑल्सो देर वॉज अ प्रीसियस मेटल लाइक पेरू एंड मेक्सिको यू हैव gold and other mines was there. So precious metal was also there. These kind of the metal attract the European people to
attract European people that they supposed to not visit America, they supposed to control America. So in starting it was like, see, in starting it was just an adventure to explore the new lands. सो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सी रूट्स के जरिए लोगों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, इंडिया के बारे में खोजा, अमेरिका के बारे में खोजा। इंडिया जो सेंटर बन गया क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको वो सेल कर सकते थे, और इंडिया में रूलिंग अथॉरिटी थी, तो इंडिया को कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं था। पर अमेरिका में क्या था कि अमेरिका में कोई रूलिंग अथॉरिटी नहीं थी, और अमेरिका में बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी थे, तो जिसके जरिए जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने सोचा कि अमेरिका को कंट्रोल करके अपने अंडर कर सकते हैं। तो ये था कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ ट्रेड, जिसने कहीं ना कहीं कॉन्क्वेस्ट को जन्म दिया कि अब इसको हमें कॉन्क्वेस्ट करके अपने अंडर में कंट्रोल में करना है। लेकिन कॉन्क्वेस्ट के लिए उन्होंने किस चीज़ को यूज़ किया, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। द पुर्तगीज एंड द स्पेनिश कॉन्कर्स द कॉलोनाइज, कि वो क्या करने लगे, इस तरह से अदर जो कंट्रीज है उनको कॉन्कर करने लगे, कॉन्कर्स करने लगे, जीतने लगे और कॉलोनाइज करने लगे। कॉलोनाइज मैंने आपको बता ही रखा है कि कॉलोनी का मीनिंग होता है कि यू सपोज टू कंट्रोल वन कंट्री एंड यूज द रिसोर्स ऑफ दैट कंट्री फॉर योर डेवलपमेंट। कि जो मदर कंट्री होता है वो अदर कंट्री को कंट्रोल, मदर कंट्री मतलब जिसने कंट्रोल किया है, और कॉलोनी कंट्री कौन सा होता है, जिसको कंट्रोल किया गया है। तो उसके ऊपर मदर कंट्री अपना पूरा कंट्रोल कर लेता है और उसको उसके रिसोर्सेज को यूज करता है अपने बेनिफिट के लिए। तो पुर्तगीज और स्पेनिश जो थे सबसे पहले इन्होंने ही वोयाग्स को, यानी समुद्र सी जो ट्रैवलिंग थी उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किया, और लेटरली इन्होंने ही कॉलोनीज को सबसे पहले एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। अब उन्होंने करना क्या स्टार्ट किया, इसके लिए चिकन पॉक्स वाज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश। स्पेनिश का सबसे पावरफुल वेपन था चिकन पॉक्स। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको अमेरिका वाज नॉट डेवलप्ड, देयर वाज नो मेडिकल फैसिलिटीज, nothing was there because there was only tribal peoples, they was not knowing even that is a kind of disease। उनको तो ये भी नहीं पता था कि ये डिजीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, जो स्पेनिश लोग थे उन्होंने चिकन पॉक्स वाले एक पर्सन को वहाँ भेज दिया। एंड एज यू नो कि चिकन पॉक्स जो है आपकी टचिंग से फैलती है, तो उस वजह से जो अमेरिका के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा चिकन पॉक्स होने लगी और वो सारे लोग मरने लगे। अमेरिका वॉज नॉट हैविंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द डर्टी डिजीज, कि अमेरिका के जो लोग थे उनमें किसी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं थी, और एज वेल एज उनके पास कोई सोर्स भी नहीं था जिससे वो इसके जरिए लड़ सकें। तो ये जो है इनविजिबल बुलेट, उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं जो अदर पीपल हैं जो बाहर से हैं उनको उन्होंने किसी तरह की इनविजिबल जो बुलेट्स हैं उनको दाग दी, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं मरते जा रहे हैं। तो उनकी नज़र में ये था, उनके पास कोई नहीं था। ओके, द रीज़न वाज व्हाई दे यूज द इनविजिबल बुलेट्स नॉट द एक्चुअल वन, बिकॉज अगर गन वगैरह होती तो गन कुड बी ब्रॉट टू द कैप्चर, कि गन जो है वो अमेरिकन भी क्या है वो ब्रॉट कर सकते थे या कैप्चर कर सकते हैं, या तो खुद लेके हो सकता है चलाना सीख जाएं। लेकिन डिजीज़ के खिलाफ उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था, दैट्स व्हाई दे यूज द डिजीज। And what was the reason of the controlling that area, ki why European people was controlling that vast area? The reason was that population of the Europe was increasing day by day. There was conflict, there was popularity of the crowded city, religious conflict, deadly disease in Europe, कि यूरोप के अंदर क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जो है लैंड सोर्सेज बहुत कम हो रहे थे, क्राउडेड सिटी होते जा रहे थे, लोग वहाँ पर रह नहीं पा रहे थे, प्रोडक्शंस वगैरह नहीं हो रही थी, तो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो न्यू लैंड उनके लिए कहीं ना कहीं इट वाज अ आइडिया दैट दे विल कंट्रोल दैट लैंड एंड दे विल प्रोड्यूस ऑन दैट एंड दे विल सेटल और दे विल सेटल द कॉलोनी फॉर देयर डेवलपमेंट। कि कहीं ना कहीं आइडिया ये था कि जो न्यू लैंड है उनके लिए एक न्यू रिसोर्स का सिस्टम बन जाएगी, और उसको कंट्रोल करके उनकी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। तो दैट वाज द आइडिया। गन्स यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि गन्स को इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि वो उनके खिलाफ यूज़ की जा सकती थी। रीजन ऑफ कैप्चरिंग क्या था कि यूरोप में खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, हंगर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों ने क्या है, माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया अमेरिका की तरफ, इन द सर्च ऑफ वर्क कह सकते हैं, इन सर्च ऑफ लैंड कह सकते हैं, कि वहाँ जाके वो अपनी अच्छी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर सकते हैं इसकी तलाश में। स्लेव वाटर ट्रांसपोर्ट टू द अमेरिका। इसके अलावा ये तो यूरोपियन पीपल थे जो वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए जा रहे थे। अब जब यूरोपियन पीपल अमेरिका में गए, वहाँ पर कैप्चर वगैरह कर लिया लैंड वगैरह को, लेकिन उसके साथ ये भी तो था कि कैप्चर करने के बाद वो काम कैसे करेंगे, तो उनको काम करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, स्लेव्स वगैरह को अमेरिका में लाना स्टार्ट कर दिया। तो अमेरिका में स्लेव कहाँ से आए आपके, बेसिकली अफ्रीका से बहुत ज़्यादा स्लेव जो है अमेरिका में आना स्टार्ट हुए। चाइना इन इंडिया, व्हाट इज चाइना इन इंडिया? द कॉन्सेप्ट ऑफ द चाइना इन इंडिया वॉज ऑल्सो बिकॉज एट द टाइम पीरियड ऑफ द 18th सेंचुरी जो चाइना इन इंडिया थे, दे वॉज अमर्जिंग एट द रिचेस्ट कंट्री, वो रिचेस्ट कंट्री के रूप में कहीं ना कहीं अमर्ज हो रहे थे। और 15th सेंचुरी में चाइना जो था, चाइना वाज रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कंटैक्ट, की चाइना में कोई ओवरसीज कंटैक्ट नहीं था, आइसोलेशन का रखा था। आइसोलेशन का मीनिंग आपको इकोनॉमी में बताया जाता है कि आइसोलेशन मतलब नो वन विल बी अलाउड टू डू द ट्रेड विद दैट पर्टिकुलर कंट्री। कि आइसोलेशन अगर कोई कंट्री कर लेता है तो वो कंट्री ना किसी से ट्रेड करेगा, ना ही कोई कंट्री उसके साथ ट्रेड करेगा, मतलब वो किसी से भी किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं करेगा, ना खरीदने का ना बेचने का। तो इसको हम आइसोलेशन बोलते हैं, वो सब कुछ अपने
अपने अंदर बनाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और जो चाइना थे वो इसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, बट लिटरली क्या है, इनकी इकोनॉमी को भी कोलैप्स किया गया। Yeah, the 19th century. So next is we are basically going to discuss about the 19th century. It is what is 19th century? 19th century emerged a definitely new change in the world politics. It was not economical. It was not only economical. There was economical, political, social, culture, and technological factor. The 19th century. If you have a look on the 19th century, so 19th century was totally having a change of. Yeah, 19th century was not only having the economical change, but political, social, and technological. All the changes was developing at that time period. So because of that changes, there was three main flow which was developing in the 19th century. First one was the flow of trade. The trades was emerging. All the country was connected towards the trade. They was trading something from some country with the second country. Second was flow of labor. Flow of labor means, because I already explained, when the European people went to America, they control all that area. So that was the vast land, and all the land was empty. No one having the control. When the European people start moving toward America, they start controlling the land. All the land under the control of the European people. Now this was the few people, and they controlled the huge land for 4,000 hectares land was in under the control of the single people. But they came from the Europe, and Europe was a developed continent, so they was elite. They was not supposed to work, so they transferred the slaves from the other colonies to the America, and they appointed the slave to work on there. So it was not only that first was flow of trade, and second was connected to the flow of labor. When they starting trade, they start controlling, and they start for also the flow of labor. The people was migrated one place to another place in the search of work. Also it was forcefully or it was willingness, both kind of the was migration or flow of the labor was there. Flow of capital was there. Capital means supposed to be people was investing in that. If the people was having the money, so they was trying to invest in the trade. So also different kind of the trade they were investing. So capital was also capital was also movement of the capital was also there, we can see. So these three kind of the flow was there in 19th century: flow of trade, flow of labor, and flow of capital. So what was the effect on the people life? If people, it affected the people life totally, because it totally changed the people life. How it is changed? The people start migrated one place to another place. They supposed to leave their houses. Might be it was good and bad both. It was negative and positive, we can say. For positively, like elite people of the Europe start controlling the land in the America, and they become rich. But negatively, for the South African people or African people, you can say that was negative, because they was sold to the American people, and or we can say European people, and they was forced to do the work without the wages. तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन पीपल के लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी था, क्योंकि वो अमेरिका की तरफ गए और उन्होंने पूरी की पूरी लैंड अपने कंट्रोल में कर ली और उस लैंड को यूटिलाइज करना भी स्टार्ट कर दिया. बट हम ये नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए वो पॉजिटिव था, क्योंकि उनको तो स्लेव बनाकर वहाँ पर ले जाया गया काम करने के लिए. तो इफ लोगों की लाइफ पे इसका पूरा इफेक्ट हुआ. उसको नेगेटिव इफेक्ट भी कह सकते हैं और पॉजिटिव भी. हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द 19th सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. बट ये कहीं ना कहीं जो ये फ्लो है, यही हमें आइडिया एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से हम जो 19th सेंचुरी की इकोनॉमी है उसको हम समझ सकते हैं. सो यहीं तक आज का आप डिस्कस कर लीजिएगा. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.